Welcome once again. एक बार फिर से स्वागत है। Let's worship the Lord for some time क्यों ना हम कुछ समय परमेश्वर की आराधना करें and go into His Word. और उसके वचन में हम जाएंगे। Trust you're doing well. और हम विश्वास करते हैं, हमें भरोसा है कि आप स्वस्थ हैं। Amen. God's grace is enough for us. परमेश्वर का अनुग्रह प्रिय हमारे लिए काफी है। Amen. आमेन। As thy days, so shall thy strength be. जैसे तेरे दिन होंगे वैसे ही तेरा बल भी होगा। Amen. आमेन। Sing that song, chorus. उस कोरस को हम गाएंगे। Heaven is a wonderful place. स्वर्ग एक खूबसूरत जगह है। Amen. आमेन। Read the book of Revelation. प्रकाशित वाक्य की किताब को जब हम पढ़ें, Towards the closing chapters, you get a little glimpse of heaven, what it is like. उसके आखिरी अध्यायों में हमें एक झलक मिलती है कि वो स्वर्ग क्या ही खूबसूरत जगह है। And Paul says, I saw things that I am unable to utter. पौलुस भी लिखता है कि मैंने ऐसी चीजों को देखा जिसको मैं वर्णन नहीं कर सकता। So glorious, so powerful, so wonderful. इतना महिमामय, इतना अद्भुत दृश्य था। Amen. आमेन। Heaven is a wonderful place, filled with the glory and grace. I want to see my Savior's face. Heaven is a wonderful place. Heaven is a wonderful place, filled with the glory and grace. I want to see my Savior's face. Heaven is a wonderful place. When we get to heaven, gonna walk with Jesus. When we get to heaven, gonna see His face. When we get to heaven, gonna talk with Jesus. Saved by His wonderful grace, because I'm saved, saved, wonderfully saved, washed in the blood of the Lamb. Saved, saved, wonderfully saved. I'm so glad I am. Hallelujah. Heaven is a wonderful place, filled with glory and grace. I want to see my Savior's face. Heaven is a wonderful place. Oh, when we get to heaven, gonna walk with Jesus. When we get to heaven, gonna see His face. When we get to heaven, gonna talk with Jesus. Saved by His wonderful grace, because I'm saved, saved, wonderfully saved, washed in the blood of the Lamb. Saved, saved, wonderfully saved. I'm so glad I am. Hallelujah. Heaven is a wonderful place, filled with glory and grace. I want to see my Savior's face. Heaven is a wonderful place. When we get to heaven, जब हम स्वर्ग पहुंचेंगे, the songwriter is saying we walk with Him. ये गीत का लेखक तो कहता है हम उसके साथ चलेंगे। We begin a walk here. हम उस चलने को प्रभु के साथ यहीं पर शुरू करते हैं। Amen. आमेन। Like Enoch, keep on walking. जैसे हनोक परमेश्वर के संग संग चलता रहा And he was not found, God took him away. और फिर एक दिन ऐसा हुआ, वो मिला नहीं, परमेश्वर ने उसको उठा लिया। Hallelujah. Sing one song in Hindi. हिंदी में गीत को हम गाएंगे। This service is both in English and Hindi. ये सभाएं जो हैं ये इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं में हैं। So sometimes you might sing more of Hindi and less of English. और कभी ऐसा हो जाता है कि हम हिंदी के गीत को ज़्यादा या इंग्लिश के कम, या इस प्रकार हो जाता है, Or vice versa. या दूसरे तरीके से हो जाता है More of English and less of Hindi. कि इंग्लिश ज़्यादा हिंदी कम, ऐसा भी हो जाता है। Wait for the word is in both. लेकिन इनके जो बोल है सभी भाषाओं में हमें मिल जाएंगे। But when we preach the word, it is in both in English and Hindi. जो वचन हम प्रचार करते हैं वो हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में वो Yes. आपको सुनने मिलेगा। Amen.
Sing this song. पीछे यीशु के चलूंगा एक चाहे दुख में रास्ता हो. एक गीत कहता है, पीछे यीशु के चलूंगा चाहे दुख में रास्ता हो. पीछे यीशु के चलूंगा चाहे दुख में रास्ता हो. वादी और पहाड़ मैदान में अगर मुझे जाना हो, तेरी खुशी से चलूंगा जहाँ गए उसके कदम. जानता हूँ कि यही रास्ता जाएगा यरूशलेम. इसलिए मैं पूछता नहीं रब कहाँ ले जाता है. झिझकूंगा नया कभी यीशु राह दिखाता है. हुकुम मानकर उसके पीछे चलूंगा हलीमी से, क्योंकि उसकी कामिल मर्जी अच्छी है मेरे लिए. दुनिया अगर मुझे लुभाए फानी चीजों से यहाँ और गुनाहों में उलझाए, दे तकलीफ मुझे हैरान कर आजाद मुझे खुदाया. रूह और जान और बदन में ताकि तेरी खिदमत करूं, रहूं तेरी मर्जी में. ले खुदावन मेरी मर्जी अपनी मर्जी में छिपा. जब मैं दौड़ में थकूं कभी मेरी हिम्मत को बढ़ा. तू मैं भर में तेरे पीछे चलूंगा सदाकत से, तब खुश रहूंगा जलाल में तेरी पाक रिफाकत से. शून्य से लेके तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में. प्रेम किया है अनंत प्रेम से, दिया पुत्र मेरी मुक्ति के लिए. शून्य से लेके तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में. प्रेम किया है अनंत प्रेम से, दिया पुत्र मेरी मुक्ति के लिए. अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा. अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा. जग में आया यीशु स्वर्ग छोड़ के, मेरा सारा दंड से लिया उसने. कोड़े खा के क्रूस उठा कर यीशु ने मुझको मुक्ति और चंगाई दे दी है.
अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अन्न वस्त्र और सभी आशीषें दी मुझे उसने भरपूरी से। खतरों और सब मुसीबतों में आँख की पुतली जैसे संभाला मुझे। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। Yes, Lord, we bless your name. हालेलुया। I will bless the Lord and give him the glory. Oh, I will bless his name and give him the glory. I will bless the Lord and give him the glory. Oh, I will bless his name and give him the glory, and will give him the glory. Sing it. Thank you, Father, for this morning. पिता आज की सुबह के लिए तुझको धन्यवाद देते हैं। We ask you that you will give us utterance to speak your word. हम तुझसे मांगते कि तू हमें वचन को बोलने की सामर्थ्य दे। Holy Spirit, हे पवित्र आत्मा, break the bread of life unto us. जीवन की रोटी आज हमारे लिए तू तोड़ दे। Bless all those who listen. हर एक सुनने वालों को आशीष देना। Give us the anointing to speak your word, Lord. और तेरे पवित्र वचन को बोलने का अभिषेक दे। In Jesus' name. यीशु के नाम से मांगते हैं,
Amen. Thank the Lord for this wonderful morning. परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर सुबह के लिए। God has been very gracious and good to us परमेश्वर हमारे प्रति बहुत अनुग्रहकारी और दयालु रहा है through the week पिछले सप्ताह भर and through the year. और बीते हुए साल भर। He brought us into another day परमेश्वर ने आज एक नए सुबह में हमको लेकर आया है to fellowship with one another कि हम इस प्रकार से एक दूसरे के साथ संगति कर पाएं and learn from His Word. और उसके वचन से सीख सकें। Amen. आमेन। Shall we look to the Lord in a word of prayer? आइए इस समय हम प्रार्थना में जाएंगे। Thank you, Father. Heavenly Father, स्वर्गीय पिता, in the matchless, glorious name of Jesus, यीशु मसीह के अतुल्य महिमामयी नाम में we are walking into your holy presence, हम तेरी पवित्र उपस्थिति में प्रवेश करते हैं, knowing, Lord, that the door is open. यह जानकर कि द्वार खुला हुआ है। And Jesus said, whatsoever you ask in my name, और यीशु ने कहा जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे we will receive it of our Father. हम उसे पिता की ओर से पा लेंगे। We ask you for the unction of the Spirit. हम तुझसे मांगते हैं पवित्र आत्मा के अभिषेक के लिए। Give us utterance to speak your word तेरे वचन को बोलने की शक्ति दे प्रभु, and your blessings to be upon us today. और तेरी आशीष आज हमारे ऊपर में होने पाए। And all those who hear, और हर एक वे लोग जो इस वचन को सुन रहे हैं, may their hearts be blessed and warmed. उनका हृदय सरगर्म हो, आशीषित हो, May they receive from you what you have for them. और वे तुझसे उन बातों को पा सके जो तू उनके लिए रखा है। We bless your holy name. तेरे पवित्र नाम को धन्य कहते हैं। In Jesus' name we pray. यीशु के नाम से मांगते हैं। Amen. आमीन। Amen. 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 Hallelujah. हालेलुया। Shall we turn our Bibles to 2 Chronicles, the 6th chapter? आइए अपनी बाइबलों को हम खोल लेंगे दूसरा इतिहास की किताब और उसका 6वां अध्याय। You remember, after the dedication, Solomon prayed this prayer. आपको स्मरण होगा कि आराधनालय के समर्पण के बाद सुलेमान राजा ने इस प्रार्थना को किया था। This is only a part of it what we are reading. हम जो अभी पढ़ने जा रहे हैं वो केवल उसका एक अंश मात्र है। So Solomon prays to God सुलेमान परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करता है for God's people. परमेश्वर के लोगों के लिए। And he reminds God also, और वो अपनी प्रार्थना में परमेश्वर को स्मरण भी दिलाता है God, if your people sin, कि यदि कभी भी तेरे लोग पाप करें and if they repent and turn back to you, और वे लोग पश्चाताप करके वापस तेरे पास मुड़कर आएं, forgive. तो तू उन्हें माफ करना। What a prayer. क्या प्रार्थना है। And then we read here, यहां पर हम फिर पढ़ते हैं verse 26. 26 आयत में, When the heaven is shut up and there is no rain because they have sinned against thee, yet if they pray towards this place and confess thy name and turn from their sin, when thou dost afflict them, then hear thou from heaven, forgive the sin of thy servants and of thy people Israel, when thou hast taught them the good way wherein they should walk, and send rain upon the land, thy land, which thou hast given unto thy people for an inheritance. जब वे तेरे विरुद्ध पाप करें और इस कारण आकाश इतना बंद हो जाए कि वर्षा न हो, ऐसे समय यदि वे इस स्थान की ओर प्रार्थना करके तेरे नाम को माने और तू जो उन्हें दुख देता है इस कारण वे अपने पाप से फिरें, तो तू स्वर्ग में से सुनना और अपने दासों और अपनी प्रजा इज़राइल के पापों को क्षमा करना। तू जो उनको वह भला मार्ग दिखाता है जिस पर उन्हें चलना चाहिए, इसलिए अपने इस देश पर जिसे तूने अपनी प्रजा का भाग करके दिया है पानी बरसा देना। Amen. It's a long prayer. ये एक लंबी प्रार्थना है सुलेमान की।
and he is interceding for God's people. और वो परमेश्वर के लोगों के लिए मध्यस्थता कर रहा है। He has known that time and again Israel had gone away from God. और वो इस बात को जानता है कि इजरायली लोग बार बार परमेश्वर से दूर चले गए। And he is reminding the people also और वो उन प्रजा के लोगों को भी याद दिला रहा है that all good things come from God. कि हर एक भली वस्तु परमेश्वर की ओर से आती है। We read in the scripture, हम पवित्र शास्त्र में पढ़ते हैं, we know that all good and perfect gifts comes from the Father of lights. हम ये जानते हैं कि सारा भला और सिद्ध वरदान ज्योतियों के पिता की ओर से हमें मिलता है, In whom there is no variableness, जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं होता neither is there any shadow of turning. और जिसमें कोई भी ऐसी छाया नहीं कि परमेश्वर उससे मुड़ जाए। And when we think of the blessings of God, जब कभी हम परमेश्वर की आशीषों को याद करते हैं, we know that whether it is spiritual, physical, mental, material, whatever it might be, हम जानते हैं चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो, आत्मिक हो, भौतिक हो, चाहे जो भी हो, it comes from God. वो परमेश्वर की ओर से ही आती है। God is the one who fulfills the desire of every living creature. परमेश्वर ही है जो हर एक जीवित प्राणी की आवश्यकताओं को पूरा करता है। We must know that we are His creation. हमें ये बात याद रखना चाहिए कि हम उसकी सृष्टि हैं। From the very beginning, nothing belonged to the devil. युग के आरंभ से ही कोई भी चीज शैतान की संपत्ति नहीं रही है। He has usurped what was God's. शैतान ने तो उसे हड़पा है जो परमेश्वर का था। In fact, Adam sold everything to Satan. हकीकत तो यह है कि आदम ने सब कुछ शैतान के हाथ में बेच दिया। Even the physical blessings which come upon us, यहाँ तक कि जो भौतिक आशीषें हमारे जीवन के ऊपर आती हैं, like rain and sunshine, जैसे कि बारिश का होना या धूप की किरण का मिलना snow या and बर्फ dew from heaven, और किसी प्रकार की ओस की बूंदे गिरना, which comes upon the earth and blesses it, जो पृथ्वी के ऊपर बरस कर उसको आशीषित कर देती है, makes the rivers to flow, और जिसके कारण नदियां पानी के साथ बहने लगती हैं, makes the lakes to be full, और तालाब पानी से भर जाते हैं, waters the earth, और पृथ्वी को पानी मिलता है, it brings forth food for people and for the cattle. और वो लोगों के लिए और जानवरों के लिए वो भोजन उपजाता है। But remember, everything comes from heaven. परंतु ये बात याद रखे कि ये सारी चीजें स्वर्ग से हमें मिलती हैं। Sunshine comes from heaven. सूर्य की रोशनी भी स्वर्ग से हमें मिलती है। Rain comes from heaven. बारिश वहां से आती है, Dew comes from heaven. ओस वहां से गिरता है, And the direction when the stars come from heaven. और तारों के द्वारा जो दिशा है वो भी स्वर्ग से हमें मिला है। The scripture says, वचन कहती है the heavens declare the glory of God. जो स्वर्ग है परमेश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है। Amen. आमेन। And his God's glory is seen in his heavens. और परमेश्वर की महिमा आकाशीय चीजों में हमें दिखाई देती है। Earth is blessed ये पृथ्वी धन्य ठहरा है, because heaven blesses the earth. क्योंकि स्वर्ग जो है वो इस पृथ्वी को धन्य करता है। As in the natural, जिस प्रकार से प्राकृतिक में, so in the spiritual. वैसे ही आत्मिक में भी होता है। As long as the rain of the Holy Ghost falls, और जब तक आत्मा की बारिश होती है, man is blessed spiritually. मनुष्य आत्मिक तौर से धन्य हो जाता है। His communion with God, उसका संबंध परमेश्वर के his साथ, walk with God, उसका चाल चलन प्रभु के साथ, and his work for God और उसका कार्य परमेश्वर के लिए is all blessed. सब धन्य होता है। Amen. आमेन। And so Solomon was fearing one thing, सुलेमान एक बात से डर रहा था, and he knew something happens always. और वो जानता था हमेशा कुछ होता है। And he says, और वो कहता, if your people, यदि हे प्रभु तेरे लोग, if they depart from you, यदि वो तुझसे दूर चले and जाएं, then he says, और तब कहता है, if you shut up the heavens, और उनके पाप के कारण यदि तू आकाश को बंद कर दे। sometimes our blessings we block it ourselves, कभी कभी हमारी अपनी आशीष को हम स्वयं बंद कर देते even हैं, as believers. विश्वासी होने के बावजूद भी। You see, God is no respecter of persons. देखिए परमेश्वर किसी भी व्यक्ति के साथ पक्षपात नहीं करता। He is faithful to his word. वो तो अपने वचन के प्रति विश्वास योग्य है। So what happens तो is, क्या होता है, sometimes
कभी कभी we depart from God. हम परमेश्वर से दूर चले जाते हैं, And what we read just now, लेकिन अभी जो हमने पढ़ा, so God causes things to happen so that we will come back to our senses. परमेश्वर इसलिए इन चीजों को होने देता ताकि हम अपने आपे में वापस आएं, We will return back to God. हम लौट कर उस परमेश्वर के पास आएं। And he says, और वो कहता है, if these people sin यदि ये लोग तेरे विरुद्ध पाप करें and you shut up the heavens. और इस कारण से तू आकाश को बंद कर दे। You know, read lot of things about shutting up of heaven and opening of heaven in the Bible. हम बाइबल में बहुत से जगह में स्वर्ग के बंद किए जाने और उसको खोले जाने के विषय में हम पढ़ते हैं। Talks of windows of heaven were opened. आकाश के झरोखे खोल दिए गए लिखा है। You see, we know that there are three parts of heaven. हम जानते हैं कि वचन के अनुसार स्वर्ग या आकाश 3 भागों में बांटा गया है। We won't discuss that. हम उस पे अभी नहीं जाएंगे, But what we are saying is, परंतु हम क्या कह रहे हैं we ourselves can block the blessings of God. कि हम स्वयं अपने पाप के कारण परमेश्वर की आशीषों को बंद कर सकते हैं। Open heaven is a blessing. खुला हुआ आसमान या आकाश आशीष है, Closed heavens is man's doom. और बंद आकाश मनुष्य का विनाश है। We often forget that we are blessed because of God's mercy and faithfulness. कितने बार हम भूल जाते हैं परमेश्वर की करुणा और उसकी दया के कारण ही हमारे पर आशीष आई है। Many times we wake up quite late when we see the blessings of God slipping away from us. और कई बार हम देर से जागते हैं जब हम देखते कि परमेश्वर की आशीष हमसे दूर चले जा रही है। Heavens are shut up स्वर्ग बंद कर दिया गया because of the sins of men. मनुष्य के पापों के कारण। God is a God of blessing. परमेश्वर आशीषों का परमेश्वर है। In the very start, God said to Adam and Eve, आरंभ में ही परमेश्वर ने आदम हवा से कहा, He blessed them. उसने उनको आशीष दी He said, Be fruitful, multiply. और कहा तुम फूलो फलो और बढ़ जाओ। Amen. आमेन। That's what his heart's desire. ये तो परमेश्वर की दिली इच्छा है। Man doesn't belong to God. मनुष्य Man doesn't belong to the devil. मनुष्य शैतान की संपत्ति नहीं है, It's God's property. मनुष्य तो परमेश्वर की संपत्ति है। And that's why the devil attacks man. और इसीलिए तो शैतान जो है आक्रमण करता है मनुष्य के To ऊपर, destroy him, to bring him low, उसको नाश करने, उसको किसी तरह नीचे गिराने के लिए, to stop the blessings of God. किसी तरह परमेश्वर की आशीष मनुष्य के ऊपर से बंद हो जाए। He knows if he can make him sin, वो शैतान जानता है यदि मनुष्य से वो पाप करा दे, automatically blessings stop. आप पे आप आशीष रुक जाएगी। Amen. मैन Shut heaven, close heavens. बंद आकाश, बंद स्वर्ग। Heavens are shut because of the sins of man. आकाश मनुष्य के पापों के कारण बंद हो जाता है। In Deuteronomy 28th chapter, व्यवस्था विवरण की किताब और उसके 28 अध्याय में 23rd verse says, और उसकी 23 आयत कहती है, we got to read it with the context. हम जब इसे पढ़ें तो उसको उसके संदर्भ में उसे पढ़ें, So we will understand it better. तब हम उसे और अच्छी तरह से समझ पाएंगे। It'll take a lot of time. और यद्यपि उसे पढ़ने आपको कुछ समय लगेगा, Take व्यवस्था time out विवरण and read it. लेकिन समय निकाल कर इसे पढ़ें। This verse says over here, 23rd verse, यहाँ पर 23 आयत कहता है, The heavens over you, your head shall be as brass, and the earth under you, your feet as iron. और तेरे सिर के ऊपर आकाश पीतल का और तेरे पांव के तले भूमि लोहे की हो जाएगी। So if you read the earlier verses, यदि इसके ऊपर की आयतों को हम पढ़ें, you'll find that God has promised so many blessings to Israel. आप पाएंगे कि परमेश्वर ने कितनी आशीषों का वायदा किया इजरायलियों को। He said rain will come in time. वो कहता है बारिश तुम्हें समय पर मिलेगी। The latter rain and the former rain both. आरंभ की और आखिरी बारिश दोनों मिलेगी। And dew will fall. और ओस बरसेगा। The earth will bring forth. और पृथ्वी बहुत उपजाएगी। You shall be blessed. और तू धन्य होगा। But परंतु यदि if you turn to other gods यदि तू मुझे छोड़ दूसरे देवताओं के पीछे चले जाए and serve them और उनकी सेवा करने and लगे worship them, और उनकी उपासना करे, then तब the heavens will become like brass. तब ये
आकाश पीतल का हो जाएगा। You pray, nothing happens. तू प्रार्थना करेगा लेकिन कुछ नहीं You होगा। sow, nothing तू happens. जमीन में बोएगा, कुछ नहीं उगता। Because God is not in your calculation. क्योंकि परमेश्वर तेरे हिसाब किताब से निकल गया है। Seek first the kingdom of God. लिखा है पहले परमेश्वर के राज की खोज करो, Then all these things shall be added. तब ये सारी वस्तुएं तुम्हें दे दी जाएगी। Hear, O Israel, हे इज़राइल सुन, the Lord thy God is one God. तेरा परमेश्वर यहोवा एक है। Hallelujah. Hallelujah. And God wants to bless you. और परमेश्वर तुम्हें आशीष देना But चाहता है। here is some conditions you need to follow. किंतु यहाँ पर कुछ ऐसे शर्त है जिसे तुझे पूरा करने की जरूरत है। Do not sin against God. परमेश्वर के विरुद्ध पाप मत करना। And when you sin and turn away from God, और जब कभी तू पाप करे, प्रभु से मुड़ जाए, the heavens become like brass. तब तेरे लिए ऊपर का आकाश पीतल का सा हो जाएगा। Again, फिर से in Deuteronomy 11th chapter, व्यवस्था विवरण और उसके 11 अध्याय में 16th and 17th verse says, 11 का 16 और 17 बोलता है। the earlier verses talk of the same thing. इसके ऊपर की आयतें भी वही बात कहती हैं। Take heed to yourselves that your heart be not deceived, that ye turn aside and serve other gods and worship them. इसलिए अपने विषय में सावधान रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारे मन धोखा खाएं और तुम बहक कर दूसरे देवताओं की पूजा करने लगो और उनको दंडवत करने लगो। Then the Lord's wrath be kindled against you, and he shut up the heavens, that there be no rain, that the land yield not her fruit, and lest ye perish quickly from off the good land which the Lord giveth you. और यहोवा का कोप तुम पर भड़के और वह आकाश की वर्षा बंद कर दे और भूमि अपनी उपज ना दे और तुम उस उत्तम देश में से जो यहोवा तुम्हें देता है शीघ्र नष्ट हो जाओ। You see, देखिए again God is speaking. फिर परमेश्वर इनसे कह रहा है, He said, listen, all these blessings are for you. कहता है देखो ये सारी आशीषें मैंने तुम्हारे लिए रखी है। It's not me who is stopping the blessings. मैं नहीं हूं जो इन आशीषों को रोक रहा हूं, It's you who have caused those blessings of God to stop. परंतु तुम ही हो जिन्होंने परमेश्वर की आशीष को रोका है। Sometimes we give God the second place. कभी कभी हम अपने जीवन में परमेश्वर को दूसरी जगह देते। Oh, if I find time, then I will pray. कहते यदि मुझे समय मिलेगा तो मैं प्रार्थना If करूंगा। I find time, I will do the work of God. यदि मुझे समय मिलेगा तो मैं परमेश्वर का काम करूंगा। You got to take out time. आपको समय निकालने की जरूरत है। And when you give, it shall be given to you. जब आप समय देंगे आपको समय दिया It's just जाएगा। just not for money. ये केवल धन के लिए नियम लागू नहीं है। Give and it shall be given. दो तो तुम्हें दिया जाएगा लिखा है। Give time and God will give you time. आप प्रभु को समय दें, प्रभु आपको और समय देगा। Not only that, न केवल इतना, you are the one who is benefited आप ही वो हैं जो इससे लाभान्वित होते हैं, because you open the doors for God to bless you. क्योंकि आप द्वार खोलते परमेश्वर के लिए कि वो आपको आशीष दे। And again in Leviticus, don't open 26:19 also says, और लय व्यवस्था 26 और उसके 19 में भी लिखा हुआ I'll है, make your heavens like iron. मैं स्वर्ग को लोहे के समान कर दूंगा आकाश को। Meaning no blessing. मतलब कोई आशीष नहीं। So that all these things Solomon knows. सुलेमान ये सारी बातों को, व्यवस्था को जानता था। And he is praying to God. और वो आज के दिन परमेश्वर से प्रार्थना करता है। When the heavens is shut up, कहता है परमेश्वर जब आकाश ऐसे बंद हो जाए there be no rain. कि बारिश ना हो, Because your people have sinned. क्योंकि तेरे लोगों ने तेरे विरुद्ध पाप किया है। You see, we misunderstand God many times. कई बार हम परमेश्वर को गलत समझ लेते हैं। He's the one who, He's the source of all blessing. वही तो सारे आशीषों का स्रोत है। And we think और हम ये सोचते that God doesn't want us to prosper. कि परमेश्वर नहीं चाहता कि हम तरक्की करें। No, He does. वो तो चाहता है, But He doesn't like one thing, परंतु एक चीज पसंद नहीं करता that we leave Him and worship other gods. कि हम परमेश्वर को छोड़कर किसी दूसरी देवता की उपासना करें। Israel had backslid इज़राइल परमेश्वर से मुंह फेर लिया था। during the time of Elijah. एलिया के समय की बात है। And to make them understand what they have done, और उनकी गलती को बताने के लिए कि उन्होंने क्या कर दिया है, Elijah comes and tells them,
एलिया नबी आकर उन लोगों से कहता है, You stopped serving Jehovah. तुम लोगों ने परमेश्वर यहो की उपासना बंद कर दी है। You grieved God's heart. तुमने परमेश्वर के हृदय को शोकित किया। You all turned to Baal. तुम सब लोग बाल नामक एक देवता के पीछे चले गए। The altar of God is desolate. परमेश्वर का जो वेदी है वो देखो कैसा टूटा पड़ा है। No more sacrifices. वहां बलिदान अब नहीं होते, No more worship. वहां पर आराधना अब बंद हो गई है। And Elijah says like this. एलिया उन लोगों से ऐसा बोलता है, I who stand in the presence of God, मैं जो परमेश्वर की हुजूरी में खड़ा होता हूँ, according to my word, मेरे वचन के अनुसार the heaven shall be shut स्वर्ग बंद कर दिया जाएगा। till again whenever I speak. और तब तक आकाश बंद रहेगा जब तक मैं फिर से बोल कर ना खोलूं। And the Bible says, बाइबल में लिखा है वो घटना 3 years and 6 months there was no rain. कि 3.5 साल तक उस देश में बारिश नहीं हुई। That's a long time. ये एक लंबा अंतराल है। Why? क्यों? God wanted people to come back to Him spiritually. परमेश्वर चाहता है कि लोग आत्मिक तौर से वापस उसके पास आएं। Sometimes God takes away our material blessings that we might be spiritually blessed. कभी कभी परमेश्वर हमारी भौतिक आशीषों को हमसे उठा लेता है ताकि आत्मिक तौर से हमको धन्य कर दे। One man was telling me, एक व्यक्ति मुझसे बोल रहे थे, when he was not saved, he had made a lot of money. जब वो उद्धार नहीं पाए थे उस समय बहुत धन उन्होंने अर्जित किया He था had defrauded people. और लोगों को उन्होंने धोखा देकर भी कमाया He था। changed cars वो कार एक के बाद एक नया खरीदते थे and he was living in pleasure. और बड़े मौज की जिंदगी जी रहे थे। Alcohol, शराब में भी थे। whatever you name it, and he indulged in that. और जो कुछ भी आप बुराई कहें उन सब में वो लिप्त हो गए। Big businessman. बड़े व्यापारी थे वो। But the day he came to Christ, परंतु जिस दिन वो मसीह यीशु के पास आए, he forsook all those evil deeds. उन्होंने वो सारे अपने बुरे कर्मों को त्याग दिया। And you know, आप जानते हैं he left that city because of persecution, उस नगर को सताव के कारण because छोड़ of his faith. अपने विश्वास के कारण। And when I met him, और जब मैं इस व्यक्ति से मिला, he was driving a taxi. वो एक टैक्सी को चला रहा था। But he said, I'm so happy वो कहता है, लेकिन आज मैं बहुत खुश हूँ because Christ has changed my life. क्योंकि यीशु मसीह ने मेरे जिंदगी को ही बदल डाला है। He has saved me from going to hell. उसने मुझको नरक में जाने से बचा लिया है, Give me eternal life. मुझको अनंत काल का जीवन I दिया could है। never imagine that man could be so happy. मैं कल्पना भी नहीं कर सकता था कि एक आदमी ऐसा इतना खुश हो सकता है। Every now and then he would talk about God, हर पल पल में परमेश्वर की चर्चा करता था, of God's goodness towards him. परमेश्वर ने जो भलाई उसके प्रति की है। The earthly blessing stopped. पृथ्वी की आशीषें तो थम गई, Heavens were open. लेकिन स्वर्ग उसके लिए खुल गया। Hallelujah. Hallelujah. Amen. What we need today हमें आज क्या is चाहिए to see heavens open. कि हम स्वर्ग को अपने लिए खुला देख लें। Elijah comes after 3 years and 6 months. और एलिया आता है 3.5 साल के बाद Gives them a challenge. और उन लोगों के सामने एक चुनौती रखता है। He says, कहता, choose you this day whom you will serve. आज के दिन तुम लोग चुन लो तुम किसकी सेवा करोगे। If the Lord is God, यदि यहोवा ही परमेश्वर है serve him. तो उसकी सेवा If करो, Baal is God, serve him. और यदि बाल देवता परमेश्वर है तो उसकी सेवा The करो। God who answers by fire. और आज के दिन जो परमेश्वर आग गिराकर उत्तर देगा, He is God. वही परमेश्वर ठहरेगा। I personally feel मैं व्यक्तिगत तौर से महसूस करता there was हूँ, not a big issue for those prophets of Baal. बाल देवता के जो नबी थे उन लोगों के लिए कोई बहुत बड़ा चुनौती नहीं था। They won't take a challenge what you have never done. वो कभी भी उस चुनौती को नहीं लेते जो कार्य उन्होंने पहले कभी किया नहीं। People bring down fire by witchcraft. लोग जादू टोना के द्वारा भी आग गिराने का काम करते But हैं, here the challenge is, परंतु यहाँ पर जो चुनौती का मुद्दा था वो ये था, who is the living God? जीवित परमेश्वर कौन है। Amen. आमेन। And you know, और आप जानते हैं very short prayer. एक बहुत ही छोटी सी He built प्रार्थना, the altar.
उसने परमेश्वर के लिए वेदी बनाया, put the sacrifice. बलिदान को उस पर रखा, One short prayer. एक संक्षिप्त प्रार्थना, Fire came from heaven, और आकाश से आग गिरी, consumed the sacrifice. पूरे बलिदान को भस्म कर दिया। Consumed the wood, consumed the stones. वो लकड़ी पत्थर सब को उसने जला People दिया। fell and said, Lord is God. सारे लोग गिर गए और पुकारने लगे, यहोवा ही परमेश्वर है। When heavens open, जब आकाश खुलता है, blessing comes. आशीष आती है। Hallelujah. 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 We can cause heavens to open हम स्वर्ग को खोल सकते हैं when we do right. जब हम कोई सही काम करते हैं। God will open heavens to bless us. परमेश्वर हमें आशीष देने के लिए स्वर्ग खोलता है। Blessings are withheld आशीषें आने से रुक जाती हैं because we neglect the house of God and the things of God. क्योंकि हम परमेश्वर के घर और परमेश्वर के काम की उपेक्षा करते हैं। Just taking a little bit time out for God's house, थोड़ा सा समय ही प्रभु के घर के लिए निकालते। you see, देखिए, God is looking at us. परमेश्वर हमारी ओर देख रहा है। If you're not giving to God what rightly belongs to Him, यदि हम परमेश्वर को वो नहीं दे रहे जिसका अधिकार परमेश्वर का है, we are depriving ourselves of the blessings of God. हम अपने आप को वंचित कर रहे परमेश्वर की आशीष पाने से। Malachi the prophet, मलाकी नाम का जो नबी था, the 3rd chapter, और उसके 3रे अध्याय में he talks something like this, वो कुछ इस प्रकार से बोलता है, 8th verse onwards. 8वीं आयत के आगे, Will a man rob God? Yet ye have robbed me. But ye say, wherein have we robbed thee? In tithes and offerings. क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? पर देखो, तुम मुझको धोखा देते हो और तो भी पूछते हो, हमने किस बात में तुझे लूटा है? दशमांश और उठाने की भेंटों में। Ye are cursed with a curse, for ye have robbed me, even the whole nation. तुम पर भारी शाप पड़ा है, क्योंकि तुम मुझे लूटते हो, वरन सारी जाति ऐसा करती है। Now listen, सुनिए, straight word coming to the people. सीधा वचन लोगों के पास तक पहुंच रहा है। The purpose उद्देश्य is not to condemn them. उनको दोषी ठहराने का नहीं है। The purpose is to how to receive the blessing of God. उद्देश्य ये है कि कैसे परमेश्वर की आशीष को पाएं। They opened themselves to the curse. उन्होंने अपने आप को श्राप के लिए खोल दिया। So the remedy for the curse श्राप का जो इलाज है is in verse 10. वो 10वीं आयत में है। He says, do this. वो कहता है, तुम ऐसा करो, Bring ye all the tithes into the storehouse, सारे दशमांश भंडार में ले आओ, that there may be meat in my house, कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। and prove me wherewith says the Lord of hosts, और सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो, if I will not open the windows of heaven and pour out a blessing, that there shall be no room enough to receive it. मुझे परखो कि मैं आकाश के झरों के तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं। You see, God is saying, you prove me and see. परमेश्वर खुद कह रहा है, मुझे परख कर देखो। Now for years we'll be arguing about tithes and offerings. हम सालों बीत जाएंगे, दशमांश और भेंटों को लेकर हम चर्चा करते रहेंगे। And the devourer is devouring us. और जो खाने वाला है, फाड़ने वाला, वो फाड़ रहा है। God is saying, listen, this is an insurance for you. परमेश्वर कह रहा, देख ये तेरे लिए एक सुरक्षा बीमा के जैसे If है। you do this, यदि तू ऐसा ऐसा करे, listen, all the silver and gold belongs to God. सुनिए, सोना और चांदी पूरी दुनिया का परमेश्वर का ही है। Now what he's wanting us, why is he wanting us to do this? फिर वो क्यों चाह रहा है कि हम इस काम को करें? So that you might be blessed ताकि आप और मैं आशीष पाएं, with earthly blessings. पृथ्वी की आशीषों से हम धन्य ठहरे। So he's saying, bring the tithes and offerings into my house. वो कह रहा है कि दशमांश को और सारी भेंटों को उसके भंडार में ले आओ, And prove me, not the pastor. और मुझको परखो, पास्टर को नहीं, Prove me, not the church. चर्च को नहीं, मुझको परखो। Because he says, क्योंकि परमेश्वर बोल रहा, prove me herewith, says the Lord of hosts. सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो।
He says, will not I open the windows of heaven? वो पूछ रहा है कि क्या मैं आकाश के झरोखे खोलूंगा नहीं And I'll pour such a blessing, you will not be able to contain it. और ऐसी अपरंपार आशीष क्या वर्षा करूंगा कि नहीं जो तुम समा नहीं पाओगे। You earn, but nothing remains. तुम कमाते हो किंतु कुछ रह नहीं जाता। You know why? आप जानते क्यों? 11th verse says, 11 आयत कहती I है, will rebuke the devourer for your sake. मैं तुम्हारे लिए नाश करने वाले को ऐसे घुड़कूंगा। He shall not destroy the fruit of your ground, neither shall your vine cast her fruit before time in the field, says the Lord of hosts. कि वह तुम्हारी भूमि की उपज नष्ट न करेगा और तुम्हारी दाखलताओं के फल कच्चे न गिरेंगे, सेनाओं की यहोवा का यही वचन है। Again he signs it with his name. फिर से परमेश्वर जो बोल रहा है मुहर लगा रहा अपने हस्ताक्षर करके। And then 12th verse says, 12 आयत में कहता all है, nations shall call you blessed. तब सारी Hallelujah. जातियां तुमको धन्य कहेंगी। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. Hallelujah. You know why? आप जानते क्यों? You see, all this is done for our good. ये सारी चीजें हमारे लिए भलाई उत्पन्न कर रही है। Sometimes it's very difficult to people to understand why this part of money God wants. कभी कभी लोगों को समझने मुश्किल होता है कि परमेश्वर मेरे आय का ये वाला भाग क्यों चाहता है। You see, listen. सुनिए, Pay your tithes in your church. आपका जो भी दशमांश है आप जिस संगति में कलीसिया में जाते वहां पर दें। Maybe a small church, big church, whatever church. चाहे वो छोटा सा एक संगति हो या बड़ा चर्च हो वहां पर दें। You give it to your pastor, your church, वो and your pastor. आपके पास्टर आपके चर्च को आप उस आशीष दें। Other offerings you can give to others. दूसरी जो आशीष और अन्य जो भेंटें हैं वो आप दूसरों को दे सकते हैं। Besides your church. आपके चर्च से हटकर भी Listen. सुनिए, To receive blessings of God, परमेश्वर की बरकत को यदि पाना है we do certain things. तो हमें उसके लिए कुछ शर्तों को पूरा करना है। Forsake sin पाप से मुंह फेरना है and do what is right. और जो सही है उसे करना है। Blessings will come. आशीष आएगी। Amen. आमेन। Open heaven will always bring a blessing and a message. खुला हुआ आकाश हमेशा आशीष को लाएगा और खुला हुआ आकाश संदेश भी लाता है। Hallelujah. Amen. We want to see heavens open. हम तो चाहते हैं कि हम स्वर्ग को खुला देखें। Heavens open over our city. हमारे इस नगर के ऊपर स्वर्ग खुल जाए। Heavens open over our country. हमारे देश के ऊपर आकाश खुल जाए। Oh, for if God would open his heavens. ओ काश प्रभु ऐसा हमारे लिए कर दे। Always. हमेशा Whenever the heavens were opened, there was a message. जब कभी भी आकाश खुला वहां पर संदेश लोगों को There दिया was a है। blessing. वहां पर आशीष आई है। Amen. आमेन। Spiritually आत्मिक तौर से and also naturally. और साथ में प्राकृतिक तौर से भी। Jacob, when he was running away from his brother, याकूब जब अपने भाई के डर से भाग रहा था, he had not finished his journey when he was still long way to go. He's in the night fell. The sun went down. अपने यात्रा लंबी यात्रा को भी पूरा नहीं किया था परंतु बीच रास्ते में था जबकि शाम ढल गई। He went off to sleep, वो सोने चला गया, afraid of all the surroundings. अपने आसपास की परिस्थितियों से घबराया हुआ, He's sleeping. और वो थक कर सो गया। There's another message over here. यहाँ पर एक संदेश है। Though he had done wrong, यद्यपि उसने गलत किया था, God understood his heart. परमेश्वर उसके हृदय को समझ रहा था And he dreams a dream. और वो एक सपना देखता है। He sees heavens open. स्वर्ग को खुला हुआ देखता है। Hallelujah. हालेलुया। You might be in an insecure place. आप एक असुरक्षित जगह में होंगे। You're running from what you have done. आपने जो किया उससे आप भागे जा रहे हैं And you know what you have done is not right. और आप ये जानते हैं जो कार्य आपने किया है वो सही नहीं है। What you said was not right. आपने जो बात कही वो सही नहीं था। You deprived somebody. आपने किसी और को वंचित किया And your heart convicts you. और आपका दिल आपको कचोटता है। At such a time like this, ऐसे ही कठिन समय में you need to see the heavens open. आपको स्वर्ग को खुला हुआ देखना है। Amen. आमीन। In prayer. प्रार्थना में। And he saw God. और उसने परमेश्वर को देखा।
And behold, the Lord stood above it and said, परमेश्वर खड़ा था और कहता है, you know what he saw? आप जानते उसने A क्या देखा? ladder traveling to heaven. एक ऐसा सीढ़ी जो कि आकाश तक ऊंचा था, Angels of God ascending and descending. और उस सीढ़ी से परमेश्वर के दूत कोई चढ़ता, लोग उतर रहे थे। Heaven was at work स्वर्ग पूरे समय कार्य कर रहा when the था। world is asleep. जब पूरी दुनिया सोती है उस समय God is awake. परमेश्वर जागा हुआ है। And he said, और वो कहता है, I am the Lord God of Abraham, thy father, and of Isaac. मैं तेरे पिता अब्राहम और इसहाक का परमेश्वर हूं। The land where you lie, will I give it to you. जिस भूमि पर तू लेटा हुआ है, ये भूमि मैं तुझे दे दूंगा। Behold, I am with thee, देख मैं तेरे साथ हूँ, and keep thee in all the places where you go. और जिस स्थान में भी तू जाएगा मैं तेरी वहां रक्षा करूंगा। Amen. आमीन। Not only a revelation, न केवल एक प्रकाशन, a message परंतु स्वर्ग से एक संदेश, of hope. आशा का संदेश। Behold, I am with thee. देख मैं तेरे साथ हूँ, Not only I am with thee, न केवल तेरे साथ हूँ, I will keep thee, मैं तेरी रक्षा करूंगा, preserve thee, तेरी सुरक्षा करूंगा, bring you back to this place. तुझे वापस इस जगह में लौटा कर लाऊंगा। What a promise. क्या वायदा है। Amen. आमीन। We pray for many things. हम बहुत सी चीजों के लिए प्रार्थना करते We हैं। say, God, हम कहते, प्रभु show me your glory. मुझे अपनी महिमा दिखा। Amen. Amen. Isaiah, यशाया नबी, 6th chapter, we know that. हम 6वें अध्याय में जानते हैं, He says, in the year Uzziah died, और वो कहता, जिस वर्ष उजिया राजा मरा, I saw the Lord मैंने परमेश्वर को देखा, sitting upon the throne, और वो बैठा था ऊंचे सिंहासन पर, high and lifted up. विराजमान था बहुत ही ऊंचे His पर, glory filled the temple. और उसकी महिमा से मंदिर भर गया। When you see, जब आप उसे देखेंगे, you will hear. आप कुछ सुनेंगे। Hallelujah. Amen. Hallelujah. Hallelujah. He saw the angels, the cherubims, उसने seraphims. स्वर्गदूतों को देखा, करूबों को देखा, सराफ को देखा। 2 wings they hide their face, 2 wings their feet, and the 2 wings they fly. 2 पंखों से वे अपने चेहरे को ढकते, 2 से अपने पांव को ढकते और 2 से उड़ते हुए कहते And थे। they say one to another, एक दूसरे से बोलता था, Holy is the Lord. ओ परमेश्वर यहोवा पवित्र है, Holy is the Lord. सेनाओं का यहोवा पवित्र है। The heavens, the whole place was filled with God's glory. सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है। And Isaiah said, Woe is me, I am undone. तब यशाया बोलता है कि हाय हाय मैं नष्ट I am a हुआ, man of unclean lips, O God. मैं तो अशुद्ध ओठ वाला I मनुष्य, dwell with people who are unclean मैं lips. अशुद्ध ओठ वाले मनुष्यों के बीच में रहता भी Such हूँ। holiness, such purity. ओ ये पवित्रता और इतनी शुद्धता, His heart got convicted. उसे देखकर उसका मन कायल हो गया। Upward look, inward look. जब ऊपर की दृष्टि हुई तो उसने अंदर की ओर देखा। Then he says, तब कहता है, I heard a voice saying, तब मैंने एक आवाज को कहते सुना, after the angel had cleansed him with the coals of fire. जब एक सराप ने हाथ से अंगारा लेकर उसके ओंठ को छू लिया, उसके बाद Whom shall I send? एक उसने वचन सुना, मैं किसको भेजूं Who will go for me? और हमारी ओर से कौन जाए। When the heavens open, जब आकाश खुलता है, you will not only see the glory of God, ना केवल आप परमेश्वर की महिमा को you देखेंगे, will hear the word of God. आप परमेश्वर के वचन को भी सुनेंगे। And Isaiah said, और यशाया बोलता है, like so many of you people have said who have come to the ministry, आप में से वे लोग जो प्रभु की सेवा के लिए निकल चुके हैं, यशाया ने भी कहा, you said like him, आपने भी उसके समान कहा, Here I am, प्रभु मैं यहाँ हूँ, send me. मुझे भेज। Unworthy, मैं योग्य नहीं, but I am willing. परंतु मैं तैयार हूँ। Hallelujah. हालेलुया। Amen. Amen. If you're willing, यदि आप तैयार हैं, God will make you worthy. परमेश्वर आपको योग्य भी बना देगा। Amen. Amen. Don't wait for the time to get perfect and go to ministry. उस समय का इंतजार न करे कि आप सिद्ध हो जाऊंगा फिर मैं प्रभु की सेवा में God has जाऊंगा। always been opening heavens to bless us. परमेश्वर हमेशा से ही आकाश को खोलता रहा है हमें आशीष देने के लिए। Ezekiel says, यहेजकेल नबी बोलता है,
first chapter, first verse. पहले अध्याय और उसकी पहली ही आयत में, Now it came to pass in the 30th year, in the 4th month of the 5th day of the month, as I was among the captives by the river Cherub, that the heavens were opened, and I saw visions of God. 30वें वर्ष के चौथे महीने के 5वें दिन मैं बंदियों के बीच कबार नदी के तट पर था, तब स्वर्ग खुल गया और मैंने परमेश्वर के दर्शन पाए। Verse 28. 28 When I saw it, I fell upon my face, and I heard a voice of one that spake. तब मैंने 28 आयत में लिखा, यहोवा के तेज का रूप ऐसा ही था, उसे देखकर मैं मुंह के बल गिरा, तब मैंने एक शब्द सुना। After he saw, उसके देखने के बाद he heard. उसने आवाज सुनी। Amen. Amen. And the whole book is full of revelations, और ये पूरी किताब प्रकाशन से भरी हुई है, of visions, दर्शनों से of भरी, heavens open. स्वर्ग के खुलने का। Amen. आमेन। Again it says, फिर से वो कहता है, even as Jesus was baptized, यीशु मसीह जब पानी के बपतिस्मे से निकला, Mark's Gospel, 1st chapter, मरकुस उसका 1 अध्याय and 10th verse says like this. 1 के 10 में इस प्रकार से लिखा है, And as Jesus was baptized, straightway coming out of the water, he saw the heavens opened, and the Spirit like a dove descending upon him, and a voice saying, Thou art my beloved Son, in whom I am well pleased. और जब वह जल से निकलकर ऊपर आया, तो तुरंत उसने आकाश को खुलते और आत्मा को कबूतर के सामने समान अपने ऊपर उतरते देखा। Hallelujah. हालेलुया। Listen, आमेन। Jesus is gone into the waters. यीशु मसीह पानी के अंदर गया। There is a little conversation between John the Baptist and Jesus. इसके पूर्व यूहन्ना जो बपतिस्मा दे रहा था और यीशु के बीच कुछ वार्तालाप हुआ। And Jesus said, To fulfill all righteousness, do it, John. यीशु मसीह ने उससे कहा, यूहन्ना सारी धार्मिकता को पूरा करने के लिए तो ऐसा ही अभी कर। So as Jesus went into the water and came out, और जैसे ही यीशु मसीह पानी के अंदर जाकर बाहर निकला, straightway heavens were opened. तो तुरंत आकाश खुल गया। Hallelujah. हालेलुया। When heavens open, blessings come. और जैसे ही आकाश खुलता है, आशीष आती है। The Holy Ghost in the form of a dove descended on him. पवित्र आत्मा कबूतर के नाई उसके ऊपर उतरा। That's not that only. ये केवल इतना ही नहीं हुआ, A voice came. परंतु फिर एक आकाशवाणी हुई। You will always hear. हमेशा आप एक वाणी सुनेंगे। Hallelujah. हालेलुया। He says, वो कहता है, This is my beloved Son, ये मेरा प्रिय पुत्र है, in whom I am well pleased. ओ तुझसे मैं प्रसन्न हूँ। Hallelujah. हालेलुया। God wants to open heavens to bless us. परमेश्वर आकाश को खोलना चाहता है, मैं आशीष देने के He लिए। said to Nathaniel, उसने नतनेल से and कहा, Nathaniel said, Can anything good come out of Nazareth? जब नतनेल पूछ रहा था क्या नासरत नगर से कोई भली वस्तु निकल सकती? Philip said, You come and see. फिलिप उसने कहा तू स्वयं आकर देख And when ले। Jesus saw Nathaniel coming, जब यीशु मसीह ने नतनेल को आते he देखा, says, Behold, an Israelite indeed, in whom there is no guile. यीशु ने कहा देखो ये सचमुच इस्राएली है जिसमें कपट नहीं है। And Nathaniel said, From whence you know me? नतनेल ने यीशु से पूछा तूने मुझको कब से जानता है? When you were under the fig tree, यीशु ने कहा I जब saw तू thee. अंजीर के पेड़ के नीचे था मैंने तुझे देखा। and he said, Jesus said to him these words, यीशु मसीह ने इन शब्दों को उससे कहे। and he said unto Nathanael, नतनेल से कहा Verily, verily, I say unto you, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ hereafter ye shall see heavens open. तुम इसके बाद स्वर्ग को खुला हुआ देखो। Hallelujah. Amen. And the angels of God ascending and descending. और परमेश्वर के दूत को चढ़ते और उतरते देखोगे। If my words were so glorious, यदि मेरे वचन तुझको इतने महिमामय लग रहे हैं, you believe my word. तू मेरे वचन को विश्वास करता, Because you believe my word, क्योंकि तू मेरे वचन को विश्वास करता, you will see my glory. तो तू मेरी महिमा को भी देखेगा। Heavens were opened. स्वर्ग खुल गया। And Bible says, बाइबल बोलती, Jesus said to him, यीशु ने उससे कहा Truly, truly I say to you, मैं तुझसे सच सच कहता, you will see the heavens open. तू स्वर्ग को खुला हुआ He देखेगा। says to us also, वो हमसे भी कह रहा if you है, believe, यदि तू विश्वास करेगा then you will see the heavens open. तब तू स्वर्ग को खुला हुआ देखेगा, And angels at work. स्वर्ग दूतों को कार्य करते देखेगा। Hallelujah. हालेलुया, हालेलुया, Amen. आमेन। Listen, सुनिए, Peter also saw heaven open. पतरस ने भी स्वर्ग को खुला हुआ देखा। You know what he saw? आप जानते उसने क्या देखा? He was very hungry.
वो बहुत भूखा था And he went off to sleep in Simon the tanner's house. और वो शमौन जो चमड़े का धंधा करता था उसके घर में जाकर सो गया। God had an assignment for Simon Peter to do. परमेश्वर शमौन पत्रस के लिए आगे एक काम रखा था। I have given you the keys of the kingdom. ओ मैंने तुझे स्वर्ग की कुंजियां दी है, To the Jews and to the Gentiles. यहूदियों के लिए और अन्य जाति के लिए भी। One part was done already. एक भाग तो उसका पूरा हो गया था, But the second part was still to be परंतु fulfilled. दूसरा भाग अभी होना था। So God had to speak to him. परमेश्वर को पत्रस से बात When he करना was था। hungry, जब पत्रस को बहुत भूख लगी, he went out to sleep and he saw heavens open. वो ऊपर गया और सो गया और दर्शन में स्वर्ग को खुला हुआ देखा। And a sheet coming down from heaven. और क्या देखा? एक चादर स्वर्ग से नीचे उतर रहा All manner of creatures. और उस चादर में तरह तरह के प्राणी हैं, 4-footed beasts. चौपाई जानवर हैं, Clean and unclean animals. शुद्ध जानवर और अशुद्ध जानवर भी, Birds similarly. आकाश के पक्षियां, Creeping things. रेंगने वाले जंतु। And God is saying, तब परमेश्वर का आवाज आकाशवाणी, rise, Peter, kill and eat. पत्रस उठ, मार और खा। Ah. He says, oh पत्रस no, पत्रस कहता है, नहीं प्रभु, कभी no, नहीं। no, nothing unclean has gone into my mouth. आज तक कोई अशुद्ध चीज मेरे मुंह के अंदर नहीं गई है। God was breaking the racial banner. परमेश्वर Barrier. पत्रस के अंदर का वो जाति का भेदभाव को वहां पर तोड़ रहा था। Jews have no dealings with Samaritans. यहूदी लोग सामरियों के साथ में कोई व्यवहार नहीं रखते थे They are superior to the Gentiles. और वो अपने आप को अन्य जाति से ज्यादा उत्तम यहूदी अपने आप को समझता God had था। to speak to Peter. लेकिन परमेश्वर को पत्रस से उस दिन बात करना The पड़ा। heavens, the sheet comes out. वो स्वर्ग खुला और एक चादर नीचे। Second time, दूसरी बार Peter says same thing. फिर जब उतरा तो पत्रस वही बात बोलता, Nothing unclean. हे परमेश्वर, कोई अशुद्ध वस्तु नहीं गई। Third time, तीसरी बार फिर हुआ the sheet is carried off. और to उसके heaven. बाद में वो चादर वापस स्वर्ग चला गया। And he heard a voice saying, तब पत्रस ने एक वचन को सुना, what God has cleansed, जिसे परमेश्वर ने शुद्ध ठहरा दिया है, don't call it unclean. उसे अशुद्ध मत कह। Amen. Amen. Today we learn a lesson. आज के दिन हम एक सबक Oh, people see we don't eat in their house. लोग कहते हैं कि हम फलाने के घर में खाना नहीं खाते, Oh, they are not up to our standard. वो हमारे स्तर के नहीं हैं, And caste is different. जाति उनका अलग है, You don't marry here, you don't marry there. वो हम उस जगह विवाह नहीं करते, वो इस जगह विवाह नहीं We करते। have no dealings with one another. हम उन ऐसे लोगों के साथ कोई व्यवहार नहीं रखते। But ऐसा if you are बोलते। washed in the blood of Jesus, परंतु यदि आपने यीशु मसीह के लहू में आप धुले हुए all हैं, barriers are broken. तो सारा रुकावट और बंधन टूट चुका There is है। no Greek, no Jew, no Scythian, no born, no free. अब तुम्हारे बीच में ना कोई यहूदी, ना यूनानी, ना कोई बंधुआ, ना कोई आजाद है। All are one in Christ. यीशु मसीह में सब उसने एक किया है। God had to teach Peter. परमेश्वर को ये सच्चाई पत्रस को सिखानी He पड़ी। said, what God has cleansed. उसने कहा जिसे परमेश्वर ने शुद्ध ठहराया What do है। you say? तू क्या बोलता है? You say unclean. तू कहता शुद्ध है, God says clean. परमेश्वर बोलता शुद्ध हो गया है। You listen. सुनिए, See the difference अंतर देखिए, between an army man and a civilian. एक फौजी व्यक्ति और एक सामान्य आदमी के बीच का अंतर। One time God said to Cornelius, एक बार परमेश्वर ने कुरनेलियुस नाम के सूबेदार से कहा send a man to Joppa. कि जोपा नगर में अपने सेवकों को भेज, Find a man called Simon Peter. वहां जाकर शमौन पत्रस नाम के आदमी को ढूंढना। You know what was his reply? आप जानते हैं सूबेदार क्या उत्तर देता है? Yes, sir. हाँ प्रभु। No arguments. कोई तर्क वितर्क नहीं। And the civilian, और दूसरी तरफ एक गैर फौजी three times. 3 बार भी बोलने पर भी He still got the same chord. अभी भी वो वही सुर वो में गा रहा, Nothing unclean. प्रभु नहीं खाऊंगा, अशुद्ध वस्तु नहीं गई है। That man, लेकिन दूसरी तरफ वो आदमी, yes, sir. हाँ श्रीमान, Amen. आमेन, Let us be like that. हम ऐसे ही हो जाएं। Amen. Lord. That time, वो उस समय the servants of Cornelius had come. कुरनेलियुस के
घर से सेवक लोग वहां पहुंच गए थे जहां शमौन था। Peter had received the message. पतरस को किंतु अब तक दर्शन से वचन मिल चुका था। They told the whole story. उन्होंने पूरी घटना को अपने घर की पतरस को बताया And they lodged with them that night. और उस Hallelujah. रात जहां पतरस था वहीं वे लोग ठहर गए। Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. The wall was broken. अब वो दूरी की दीवार अब टूट चुकी He थी। did not apply to the Jerusalem for permission. उसने यरूशलेम में आवेदन नहीं किया, अनुमति दो इनके साथ में रुकूं नहीं। Sometimes our organizations cram you where the Spirit of God cannot speak. कभी कभी संगठन के नियम आपको ऐसे मरोड़ के रखते कि परमेश्वर की पवित्र आत्मा काम नहीं कर The पाती। laws and bylaws and all kinds. वहां पर नियम है, अधिनियम है, तरह तरह के कानून है, Nothing can supersede the word of God. लेकिन कोई भी कानून परमेश्वर के वचन के ऊपर नहीं जा सकती। Peter obeyed God. पतरस ने परमेश्वर की वाणी को स्वीकार किया। And he went and said, उन लोगों के साथ गया और कहता है, you know what message he got? आप जानते हैं उसको क्या संदेश स्वर्ग Of से? truth I perceive. मैं ये सत्य बात अब जान चुका हूं God is no respecter of man. कि परमेश्वर Hallelujah. किसी भी लोग के बीच भेदभाव नहीं करता। Hallelujah. हालेलुया। He says, कहता है वहां, of truth I perceive that God is no respecter of persons. ये बात, ये सत्य मैंने अब जान लिया कि परमेश्वर किसी के बीच भेदभाव नहीं करता। But in every nation, he that feareth God and worketh righteousness is accepted with him. परंतु हर एक राष्ट्र और जाति में जो लोग परमेश्वर का मानते हैं वो उनको आशीष देता है। When Cornelius was falling on his feet, he said, no, I'm just an ordinary man, don't do that. कुरनेलियुस सूबेदार जब पतरस के सामने दंडवत करने लगा, पतरस ने मना किया, कहा मैं भी तेरे ही सामान्य आदमी। He says, come, everybody is ready. और कहा पतरस को, अंदर आ, सब लोग तेरा इंतजार कर रहे All हैं। sat hungry. भूख के साथ कुछ सुनने बैठे हैं। Gentiles. अन्य जातियों की भीड़ है। This is not Jews. ये यहूदियों की भीड़ नहीं है, Gentiles. अन्य जाति भीड़ है। Angel had given direction to this man. स्वर्गदूत ने इस प्रभु के अपने दास को वचन दिया था। As Peter spake, और जैसे ही पतरस वहां के लोगों से बोलने लगा, Holy Ghost interrupted. पवित्र आत्मा बीच में ही आ गया। That's enough, Peter. पतरस, तेरा वचन बस काफी है, I take over. अब यहाँ से मैं ले The रहा हूं। Holy Ghost fell upon them. पवित्र आत्मा बैठे हुई इस भीड़ के ऊपर उतर They आई spake with unknown tongues. और वे जो बैठे थे अन्य They भाषा prophesied. भविष्यवाणी करने लगे। The church came to know Peter had gone there. कलीसिया जो थी यरूशलेम में, पता चला कि पतरस वहां गया They था। pulled him and said, what is this what you done? उन्होंने उसको बुलाया और डांट लगाई, तू वहां क्यों गया? He says, listen, पतरस ने कहा, सुनो, these men also came with me. ये भाई लोग भी मेरे साथ वहां गए थे, They will tell you what happened. ये लोग तुम्हें बताएंगे वहां क्या हुआ। That same Holy Ghost fell upon them as it first fell upon us. वही पवित्र आत्मा Hallelujah. जो हम पर उतरा वही इनके ऊपर भी उतरा। They held the words. उन्होंने वचन को, वो शांत हो गए सब This is, yes, it is all God's doing. और कहा ये सचमुच परमेश्वर ने ही They किया। glorified God. उन्होंने प्रभु की महिमा की। When heavens open, जब स्वर्ग खुलता है, blessing comes. आशीष आती है। Hallelujah. आमेन। Stephen, स्तिफनुस नाम का आदमी, when he was being stoned to death, जब उसको लोग पत्थर मार के हत्या कर रहे थे, he said like this. उसने इस रीति He से looked up and said, आंख ऊपर उठाकर बोला, I see the heavens open. मैं स्वर्ग को खुला हुआ देख सकता हूँ। Glory. महिमा। Hallelujah. हालेलुया। And the Son of Man और मनुष्य का पुत्र is standing at the right hand of the Father. पिता के दाहिनी ओर बैठा है। He's always sitting. Why did he stand? हमेशा वो तो पिता के दाहिनी ओर बैठा था, लेकिन आज क्यों खड़ा? He's welcoming his servant home. वो तो अपने दास को कुछ ही पल में स्वर्ग में स्वागत करने वाला है। As the stones fell on him, जैसे जैसे पत्थर एक एक करके स्तिफनुस पे पड़ रहे, he fell on the ground and said, Lord, receive my spirit. वो जमीन में ढेर होते होते बोला, परमेश्वर मेरी आत्मा को ग्रहण कर, Don't lay this sin to their charge. और ये पाप का दोष इन लोगों के ऊपर मत लगाना। Listen, friends, सुनिए दोस्तों, heaven has always got a message for you. स्वर्ग ने हमेशा ही आपके लिए कोई संदेश रखा है। John says यूहन्ना बोलता है in the book of Revelation, प्रकाशित वाक्य जो आखिरी किताब है उसमें, 4th chapter, 1st verse, और उसका 4था अध्याय
और उसकी पहली आयत में, And after this I looked, and behold, a door was opened in heaven. And the first voice which I heard was a trumpet talking with me, which said, Come up hither, I will show you the things which must be hereafter. इन बातों के बाद जो मैंने दृष्टि की तो क्या देखता हूँ कि स्वर्ग में एक द्वार खुला हुआ है, और जिसको मैंने पहले तुरही के से शब्द से अपने साथ बात करते सुना था, वही कहता है, यहाँ ऊपर आ जा, और मैं वे बातें तुझे दिखाऊंगा जिनका इन बातों के बाद पूरा होना अवश्य है। Amen. आमेन। After this I looked, behold, a door is open in heaven. इन बातों के बाद मैंने दृष्टि की तो क्या देखा, स्वर्ग में एक द्वार खुला हुआ है। Hallelujah. हालेलुया। His door is open. ओ द्वार, प्रभु का द्वार खुला है, Heaven is open. स्वर्ग खुला है। Seeing heaven open, स्वर्ग को खुला हुआ देखना, pray to God. परमेश्वर से प्रार्थना Nothing करें, will hinder. कोई भी चीज रुकावट ना बने, That nothing will come between us and God. कोई भी ऐसी चीज मेरे और परमेश्वर के बीच ना आए, So that heavens will always remain open for us. ताकि हमारे लिए स्वर्ग हर समय खुला रहे। If the heaven is shut, यदि स्वर्ग बंद है, if your people repent, यदि तेरे लोग अपने पापों से मुड़ जाएं, hear from heaven, O God, तब हे परमेश्वर स्वर्ग से उनकी प्रार्थना सुनना and forgive them, और उनको माफ कर देना, and teach them the good word, और इन अच्छे वचनों को उन्हें सिखा, that they shall receive rain from heaven. ताकि वे स्वर्ग से बारिश को पाएं। Amen. आमेन। Even me, मैं भी प्रभु, even me, मैं भी, let some showers fall on me. ओ मुझ पर भी आशीष की बारिश बरसा दे। Lord, I hear of showers of blessing. प्रभु मैं आशीष की बारिशों के बारे में सुनता Thou art scattering full and free. ओ तू तो उसे मुफ्त में लोगों के ऊपर बरसाता है, Showers the thirsty land refreshing. और ये बारिश जो कि सूखी भूमि को तृप्त करती है, Let some showers fall on me. अब मुझ पर भी कुछ बारिश आशीष की कर दे। We hear of a movement there. हम वहां पर कोई एक बड़े आंदोलन बहाव को सुनते हैं, The Holy Ghost movement. पवित्र आत्मा की हलचल की खबर, Salvation. उद्धार की खबर, Heavens are open. स्वर्ग खुला हुआ। Oh God, हालेलुया। we pray हम प्रार्थना करते, that it come. उसे आने दे प्रभु। Oh Lord, we pray thee. हम तुझसे यही प्रार्थना करते, Let the showers of blessings fall. आकाश की उन बारिशों को बरसने We are दे। waiting. हम रुके हुए, We are waiting. हम रुके हैं। Oh, revive the hearts of all. हर एक के मन को एक बार फिर सरगर्म कर दे। Oh, this is our prayer. हमारी यही प्रार्थना है। Is this your prayer? क्या ये आपकी भी प्रार्थना है लोगों? We pray for so many material things. हम इतनी भौतिक चीजों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। God wants to bless us. परमेश्वर हमें आशीष देना चाहता But the है, best of all, और सबसे बेहतरीन when you see heavens open, जब आप स्वर्ग को खुला हुआ देखेंगे, seeing heavens open. स्वर्ग को खुला हुआ देखेंगे, On final day, उस अंतिम दिन में heavens will open. स्वर्ग खुल जाएगा, Jesus will come. यीशु मसीह आएगा। Hallelujah. Amen. Hallelujah. हालेलुया। What a glorious day that's going to be. वो क्या महिमामय दिन होने वाला है। Some glorious morning. किसी महिमामय सुबह Jesus will come यीशु आएगा, for you and for me. आपके लिए और मेरे लिए। Heavens will open. स्वर्ग खुल जाएगा He will descend. और वो उतर कर आएगा। Listen, सुनिए, today, आज के दिन if there are any hindrances, यदि कोई भी किस्म की यदि रुकावट है, remove it by repentance. उस रुकावट को पश्चाताप करके हटा दे। God will bless you. परमेश्वर तुझको आशीष देगा। If you have to follow some principles, यदि आपको कुछ नियमों का पालन करना है, what we have mentioned here, जिसे हमने आज वचन में देखा है, do it. तो आप वैसा करें। Prove me and see. परमेश्वर कह रहा, मुझे परख कर देखो Will not I open the windows of heaven, कि मैं आकाश के झरोखों को खोलता हूं या नहीं, pour a blessing upon you. तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष को उंडेलता हूं। Amen. आमेन। Shall we pray? आइए हम प्रार्थना करें। Heavenly Father, हे स्वर्गीय पिता, matchless glorious name of Jesus, यीशु मसीह के अतुल्य महिमामय नाम में we pray tonight, this day, हम आज के दिन तेरे से प्रार्थना करते हैं, those things that have hindered our lives वे from being बातें blessed,
जो हमारे जीवन को धन्य ठहरने में रुकावट बनी, remove them from us, O Lord. प्रभु उन्हें हमारे जीवन से हटा दे। We repent of them. हम अपनी गलती को लेकर माफी पश्चाताप कर दे। We forsake them. हम उन्हें त्याग छोड़ देते पिता, We would do what you want us to do. और उस काम को करेंगे प्रभु जो तू चाहता हम करें। And Lord, you said, प्रभु तूने कहा है, prove me and see. मुझे परख कर देखो। Will not I open the doors, windows of heaven and bless you? कि क्या मैं आकाश के झरोखे खोल कर तुम्हें आशीष देता हूं अथवा नहीं। O Lord, परमेश्वर, not only to see but to hear from you. ना केवल तुझको देखने परंतु तेरी आवाज को भी हम सुनना चाहते हैं, And our hearts will be blessed. और हमारा हृदय धन्य ठहरेगा। Heal the sick. बीमार जो हैं उन्हें चंगा कर दे In Jesus' name, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। and set the captive free. जो बंधन में हैं वो आजाद हो जाएं। Bless the hearers of thy word. तेरे वचन को सुनने वालों के ऊपर बरकत हो, In Jesus' name. प्रभु यीशु के नाम में। Amen. आमेन आमेन। Thank God for your prayers and for the offering. परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं आप लोगों की प्रार्थनाओं के लिए भी, और जो भेंट आप देते हैं उसके लिए भी। The church has opened up offline also, कलीसिया अब ऑफलाइन भी हो चुकी है, but still there are others who wish to put their offerings in the house and then they send them. और फिर भी लोग हैं जो अपनी भेंटों को ऑनलाइन रीति से प्रभु के भवन में देना चाहते हैं। So we put it right now. You will sing one chorus. और इस समय जब हम एक कोरस को गाएंगे, आप अपने भेंटों को एकत्रित कर सकते हैं। Heaven is a wonderful place, filled with glory and grace. I want to see my Savior's face. Heaven is a wonderful place. Lord, we ask your blessing upon this offering. परमेश्वर, हम तेरी आशीष को इस भेंट के ऊपर में मांगते हैं। Those who gave, bless them. Those who could not give, bless them too. जिन्होंने दिया उन्हें आशीष दे, जो दे ना सके उन्हें भी आशीष देना। May we all together love you, worship you, and serve you all the days of our life. ताकि हम सारे लोग जीवन भर तुझसे प्रेम कर सके, तेरी सेवा कर सके प्रभु, तेरे साथ बने रहें। Bless it, Lord. आशीष देना प्रभु, In Jesus' name. यीशु के नाम से इस दुआ को मांगते हैं। Amen. आमीन। And now may the grace of our Lord Jesus Christ, the love of God the Almighty, the blessed communion of the Holy Spirit rest and abide with us and all the saints all around this world, now and until Jesus comes back again. आमीन। Amen.